welcome back to our YouTube channel. In previous class, we have discussed introduction of list, how we can create a list and how we can update and access a list. In part 2, we will discuss its operation. What kind of operation on list perform. Today we will see how we can traverse a list. So traverse means whatever I am passing the elements in the list. So in traversing, it will access and display all the elements on the screen. For this, I will use for loop. As we know, for loop helps to get the elements, all the elements one by one. Clear? So we have already discussed how we declare conditional statements like for loop, iterative statement. For is a keyword, item we will define it, in is a keyword, and list we will define it. Okay, and we will apply the colon at the last, and here we will write our statement. Like, see, here I have declared a literal computer. ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पर कंप्यूटर किया है. नाउ देखिए, सबसे पहले if I don't write these parentheses, that will be okay. I have declared the string literal here. Now I want represent L as a list. ठीक है, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ और मैं लिस्ट यहाँ भी डिफाइन कर सकती हूँ कंप्यूटर के साथ में. कैसे? जैसे कि L इक्वल टू लिस्ट. ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या मेंशन कर सकते हैं, वट एवर द स्ट्रिंग आई विल गिव. ठीक है, and now I will use for loop. This was my list and I will mention the list variable here, and x is the number of the elements will traverse in this variable. Now I will do print x. Yeah. अभी हम execute करके देखेंगे how we can execute this query. So, but first of all, see, this is my list L. Yeah. Now I want to use for x for my elements in list. This I will put the colon at the last, and I want to see all the elements. Now देखिए क्या कर रहा है ये, रिटर्निंग मी स्ट्रिंग, रिटर्निंग मी फ्लोट, स्ट्रिंग, नेस्टेड लिस्ट है ना, लिस्ट है, दिस इज लिस्ट, दिस इज टपल, दिस इज डिक्शनरी. क्लियर? But I want display all the elements in a line. So what I will do now, I will use this line again, and I will use print x or and देखिए अब ये क्या कर रहा है, अब ये हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करके दे रहा है, एक ही लाइन में हमें वैल्यूज को शो कर रहा है. सो दिस इज द वे टू ट्रैवर्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट. क्लियर? नाउ सेकंड वन इज जॉइनिंग लिस्ट. वी हैव 1, 2 और मोर देन 2 लिस्ट, वी कैन जॉइन ऑल द लिस्ट. जॉइन टू लिस्ट, रिटर्न द कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट. देखो हमने कॉन्कैटिनेट पढ़ा था ना, वी हैव स्टडीड इन स्ट्रिंग. फॉर कॉन्कैटिनेट वी यूज प्लस साइन. क्या साइन यूज करते थे हम? प्लस साइन यूज करते थे. एंड एल, देखिए एल, दिस इज वॉज माई स्ट्रिंग, दिस इज माई L1. ठीक है, ये कैसी है, मेरी लिस्ट 1 है. एंड L2 कैसी है, लिस्ट 2 है. L2 कैसी है, लिस्ट 2 है. एंड आई वॉन्ट टू कॉन्कैटिनेट बोथ द लिस्ट, सो आई विल डू इट. चलिए अभी हम एक L2 क्रिएट करते हैं. L1, L list is already there. I will create L1. Here I will write list code. क्या करूंगी मैं? कोड को करूंगी.
ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या ये डिस्प्ले हो रहा है। एग्जैक्टली L1 भी है L2 भी है। नाउ आई वांट टू डू प्रिंट फॉर L प्लस L1। ठीक है, देखिए क्या हो गया, L1 it was still here till the dictionary and I have concatenate with the L1 CODE. ठीक है, this is all about joining the list. Now replicating, oh you can replicate the list same like string, so for replicating we will use this sign. Okay, and you can replicate by like L1 I have the L1, yes I have, but I will do, I want twice of this, I want कि आप replicate करें 2 times. Now देखिए CODE it is replicating 2 times. Keep in mind which I told you in string also, for replicating you have to mention integer value only. ठीक है, if you type in string it will give you an error, type error. ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ये किस तरह का एरर है, टाइप एरर है, वैल्यू एरर है, की एरर है, यू हैव टू फोकस. ठीक है, so this is all about replicating. Now slicing we have studied. Slicing क्या होता है, some part of something, substring पढ़ा था हमने substring में, substring. तो ऐसे ही लिस्ट का whatever the part we want that is the sub part of a list. और वो सब हम कैसे करेंगे, by the indices. ठीक है, so for slicing we will define in the square brackets, this will be my start, this is stop and this is step. That means how many steps you want to jump over the data. ठीक है, now slicing करनी है. ठीक है जी, हम slicing कर लेते हैं. I want to access my L1, I want to access my L1 list. Done. Now I want to do slicing. Okay जी, करते हैं हम slicing. You know, देखिए अच्छा, if I don't mention anything there, what happens? Return में complete string. ठीक है, but if I do, आप 3 से स्टार्ट कीजिए. कहां से स्टार्ट कीजिए, 3 से. देखिए आप इंडेक्सिंग 3 से स्टार्ट करेगा. देखिए यहाँ क्या होगा, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. और ये 3 से कहां जाएगा, अप टू एंड. ठीक है, अप टू लास्ट एलिमेंट. ठीक है, बट इफ आई वांट कि आप स्टार्ट 0 से करेंगे तो मैं कुछ मेंशन नहीं करूंगी और मैं चाहती हूँ कि आप 4 तक रिप्रेजेंट कीजिए. ठीक है, तो 4 तक करने के लिए आपको यहां तक की वैल्यू शो करेगा. ठीक है, एंड वी हैव डिस्कस्ड फॉर द नेगेटिव इंडेक्सिंग. क्या था कि नहीं, हमने किया था ना, नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे स्टार्ट होती है, -1 -2 राइट टू लेफ्ट. क्या था ना, हमने राइट टू लेफ्ट हम मूव करते हैं. ठीक है, सो अब मैं चाहती हूं मैं नेगेटिव के साथ भी डील करके देखूं. ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे करूंगी मैं, L, और मैं चाहती हूँ आप मुझे ना L1 से सब रिप्रेजेंट कर दो. अच्छा चलो, इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या होगा इसका आंसर. देखिए -1 क्या है, दिस वाज माय L, -1 कहाँ होगा, फॉर दिस कंप्लीट डिक्शनरी. ठीक है, चलिए इसने -1 से तो स्टार्ट किया. कहां से स्टार्ट किया इसने यहां से तो स्टार्ट किया. कहां तक जाना है नहीं पता, नहीं पता कि आगे कुछ है. देखिए जब इंडेक्सिंग होगी तो मैंने क्या बताया था, वी विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. क्या इसके पास ऑप्शन है राइट में जाने का, नहीं है ना, कि सिर्फ आपको क्या रिटर्न करेगा, CS रिटर्न करेगा. क्या रिटर्न करेगा, CS. चलिए एग्जीक्यूट कर लेते हैं. ठीक है, मीन्स ये डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है. आई वांट टू से कि ये डिक्शनरी रिटर्न करेगा बिकॉज ये तो कंप्लीट आएगा ना. तो यहाँ में क्या रिटर्न कर रहा है, डिक्शनरी कर रहा है. अच्छा चलिए ठीक है, अभी मैं L, अब मैं कुछ लॉन्ग वैल्यू देती हूँ लाइक -5 और मैं चाहती हूँ कि आप लास्ट वैल्यू तक चली जाइए. ठीक है, अब ये -5 कहाँ से स्टार्ट करेगा, देखो दिस वाज -1 -2 होगा ये पूरा टप्पल. ठीक है, दिस लिस्ट विल बी -3, दिस विल बी -4 एंड दिस विल बी -5. तो ये -5 से स्टार्ट करेगा और ये पूरी डिक्शनरी तक आपको प्रिंट करके देगा. चलिए एग्जीक्यूट कर लेते हैं. देखिए वी आर गेटिंग. ठीक है, अब ये आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे. ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप क्या सीख पा रहे हैं.
तो हम यहाँ करेंगे -3 से लेकर 3 तक की, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू रिप्लाई मी, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन, अच्छा एक और मैंने होमवर्क लिखा था, बट आप यहाँ ये वाला होमवर्क भी करेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. So this is all about slicing. I have taken something different example here. This is your homework. ठीक है, आप मुझे रिप्लाई करेंगे. I will wait for your reply. And in next class we will do according to the syllabus. Thank you for watching. Bye bye.